water absorption. Mainly there are two ways or modes of water absorption: passive absorption and active absorption. ठीक है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन है और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन. वो हम लोगों ने किया था. तो ये we will do one thing, 6.9 translocation of water करेंगे. Translocation, the transport of water with dissolved minerals from roots to other aerial parts like the stem and leaves against the gravity is called as translocation or ascent of sap. देखो, प्लांट जो है वो वाटर लेके जाते हैं to the upper part. ये stem है, from stem to all other parts of the plant, सब leaves को, flowers को, fruit. So is it going against the gravity? Yes, it is going against the gravity. Gravity के खिलाफ. Gravitational force is acting downward, correct? But this is going upward. So it goes in the upward direction against the gravity, and hence it is called as ascent of sap. इसको क्या नाम दिया गया? Ascent of sap या translocation of water. ठीक है? This is called as ascent of sap. Translocation of water occurs through the lumen of conducting elements of xylem, tracheids and vessels. क्या समझा? ये जो xylem होता है, ये xylem and phloem, ये जो stem है, stem का जो middle portion है, middle बीच वाला portion, त्याला आपण बोलतो मधला भागला बोलतो xylem. काय बोलतो त्याला? xylem. हे xylem मधले वेगवेगळे पार्ट्स आहे, म्हणजे xylem trachea आहे, xylem parenchyma आहे, xylem vessels आहे. समजलं का? असं वेगवेगळे पार्ट्स असतात. झायलम फायबर आहे, 4 प्रकारचे असतात झायलम. तर त्याचे टिश्यू. तर ते झायलम आहे ना, काय करतो, तिथून वॉटर जातो, असं वरती जातो. त्यामुळे त्याला बोलतात झायलम ट्रकिड्स वेसल्स इन ऑल व्हॅस्क्युलर प्लांट्स. ठीक आहे, सगळे व्हॅस्क्युलर प्लांट. हे ल्युमेन आहे. ल्युमेन म्हणजे माहिती आहे ना, पाईप आहे. पाईपच्या जे आतमध्ये जागा आहे त्याला आपण बोलतो ल्युमेन. यामध्ये पण ल्युमेन आहे ना झायलम मध्ये. ठीक है, you can see lumen in xylem. So xylem में you can see the lumen. You can see the lumen. देखो ये lumen है. Water filled in it, and from the lumen it goes in the upward direction. So the sentence which I read, I just explained you diagrammatically that the translocation of water occurs through the lumen of conducting elements. Conducting elements, the element which will carry the water. Okay, elements like tracheids and vessels in all vascular plants. Ringing experiment has proved that xylem is the path of the ascent of sap. Ringing experiment ने क्या बताया? Xylem is the path of ascent of sap. Okay, several mechanism theories have been put forth to explain the mechanism of translocation of water. Okay, the theories include the vital force theory, relay pump theory, physical force theory, root pressure theory, etc. मतलब ये वाटर ऊपर कैसे जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए. उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट थियरी, रिंगिंग थियरी, फिर बाद में रूट प्रेशर थियरी, ऐसे बहुत सारे थियरीज है. रिले पंप थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी, बहुत सारे ऐसे थियरीज है. थियरीज मतलब विचार, जिसके अलग अलग थियरीज है जिन्होंने देखा. इसमें से रूट प्रेशर थियरी और वाइटल थियरी को पढ़ते हैं. क्या है ये रूट प्रेशर थियरी? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द activity of living cells of root is responsible for translocation of water. लिविंग सेल्स की जो एक्टिविटी है वो वाटर को ऊपर लेके जाने में रिस्पॉन्सिबल है. Julian Priestley proposed this theory. When a stem of potted plant is cut, एक प्लांट जिसको हमने पॉट पे लगाया है उसके स्टेम को कट किया उसने. When the stem of a potted plant is cut few inches above the soil by a sharp knife, एक sharp knife से कट किया, तो xylem sap is seen flowing out. xylem के बीच में से जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है ऐसा दिख रहा है. Flowing out, that is oozing out through the cut end. This exudation मतलब coming out, क्या coming out? Water or the sap at the cut end of stem is the good proof for the existence of root pressure theory.
ये रूट प्रेशर थ्योरी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। As water absorption by the root is constant and continuous process, a hydrostatic pressure is developed in the living cells of the cortex of root. एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है इन द लिविंग सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पता है तुम लोगों को? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितनी बार मैंने बताया, ठीक है? इज द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। एक मटका है, क्या है? एक मटका है, मटके में क्या है? पानी है। तो पानी का प्रेशर इस मटके के ऊपर जो है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? This is termed as a root pressure theory by S. Hales. It is due to the root pressure, water along with dissolved minerals is not only forced into xylem but also conducted upward against the gravity. तो एस हेल उन्होंने क्या बताया, ये वाटर मिनरल्स ऊपर जाता है। देखो इधर दिया है ना कट एंड, यहाँ पे देखो कट एंड दिया है, स्टेम कट किया इधर, देखो कट स्टेम, यहाँ पे वाटर कैसा ऊपर जा रहा है, दिख रहा है तुमको? वो मैनोमीटर फाइनली वो मेजर करता है। मैनोमीटर स्पिग्मो मैनोमीटर नहीं है, वो मैनोमीटर अलग है, मर्क्यूरी लेता है इसमें, वो मेजर करता है कितना प्रेशर है, ठीक है? फिर बाद में root pressure seems to be largely an osmotic phenomenon and its development is an active process. The value of the root pressure is always positive. Root pressure is always positive, +1 to +2 bar, +1 से +2 bar. Bar is the measurement of pressure ना, pressure measure करते हैं ना, bar pascal, ये pressure measure करते हैं, unit उसके, okay? Which is enough to pump the water to the height of 10 to 20 meter. इससे कितना height ऊपर पानी जा सकता है? 10 मीटर से 20 मीटर हाइट तक जा सकता है। The factor like oxygen, moisture, temperature of the soil, salt content and etc. influence the root pressure theory. ये सब root pressure theory को affect करता है। Factors like temperature of the soil, ठीक है? Let's go ahead. Repetition of the ascent of sap takes place due to root pressure. Ascent of sap मतलब upward movement of water takes place किसके वजह से होता है? Through root pressure. You know ascent of sap, upward movement of water. Sap is a liquid present inside the plant. Remember, लिख के ले लो. You should have a textbook अब बच्चे लोग. सो के लेक्चर अटेंड नहीं करने का. Sap, ठीक है? It is a liquid present inside the plant. It is not applicable to plants taller than 20 meters. 20 meters से ज्यादा plant tall है, ये root pressure is not applicable. Ascent of sap can also occur even in the absence of root. Ascent of sap root के absence में भी हो सकता है. रूट प्रेशर वैल्यू, तो रूट प्रेशर कैसे बोल सकते हो तुम, है ना? सो रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट नियरली जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्म ट्रीज. टॉल जिम्नोस्पर्म ट्रीज में तो रूट प्रेशर जीरो होता है, तो उसमें पानी कैसे ऊपर जाता है? इन एक्टिवली ट्रांसफरिंग प्लांट नो रूट प्रेशर इज डेवलप. जो प्लांट जिसमें एक्टिवली ट्रांसपिरेशन होता है तो रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता है. Xylems are under normal condition is under tension. It shows negative hydrostatic pressure और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें भी रूट प्रेशर मतलब एप्लीके होने का चांसेस नहीं है. तो इन सब केस में कैसा पानी ऊपर जाता है? प्लांट टेक वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. Since all these things cannot be explained, root pressure theory got rejected. This theory इतना अच्छे से explain किया but reject किया. To sum up, therefore root pressure is not the sole mechanism. वो main mechanism नहीं बोल सकते. Explaining the ascent of sap in all plants varies height. ये कुछ स्मॉल प्लांट के लिए ठीक है, बट टॉल प्लांट के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है. नाउ सेकंड कम्स इज कैपिलरी थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी. कैपिलरी थ्योरी बहुत सिंपल है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है. तुम्हारे पास कैपिलरी ट्यूब होगा, ठीक है? एक ट्यूब है, इसको पानी में डिप करो. पानी में डिप करोगे तो क्या देखोगे?
इसके अंदर जो पानी में अगर तुमने डिप कर दिया, ये वाटर है समझो, वाटर, तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, समझ में आया, ऊपर तक जाएगा, ये वाटर लेवल ऊपर तक जाएगा, समझ में आया। सो ये अपने आप ऊपर जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी थियरी। बट इसके लिए जो ल्यूमेन ऑफ जाइलम है, जाइलम का जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन ऑफ जाइलम, it should be in ये lumen of xylem, it should be in direct contact with water. So it is not the xylem contact with water, it is the phloem which is in contact, sorry, it is the root which is in contact with water. Second, इसके लिए lumen of the xylem should be continue throughout, पूरा continue होना चाहिए, lumen of xylem continue होना चाहिए ना, पूरा continue होना चाहिए, but वो continue नहीं होता है, किधर कम किधर ज्यादा होता है। तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव के वजह से इस थियरी को भी रिजेक्ट किए। दूसरा कैपिलरी थियरी जो है, इट कैन रेज वाटर ओनली सर्टेन हाइट तक, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। सो इन टॉल प्लांट हाउ वाटर गोज अप, तो ये कुछ फिजिकल प्रोसेस कुछ चीज के लिए ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द फिजिकल फोर्सेस एंड डेड सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर असेंट ऑफ सेल। कुछ फिजिकल फोर्स और डेड सेल्स है रिस्पांसिबल है असेंट ऑफ सेल के लिए। फिर बाद में क्या दिया, दिस थियरी वाज पुट फोर्थ बाय बोहेम इन 1863। बोहेम एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट। उन्होंने 1863 में, कितना साल पुराना है ना, ठीक है, उन्होंने ये थियरी बताया। विक डिप्ड एन ऑयल लैम्प shows the capillary due to which the oil is raised upward। उन्होंने ऑयल लैम्प में बताया ऑयल अपवर्ड रेज होती है। तो हम लोग को भी मालूम है, हम लोग दिया लगाते हैं ना भगवान को, देखो दिया अपने आप उसको सोख करके ऊपर ऊपर जाता है ना, चलता है, हम बत्ती दिवाली वगैरह में। Now this the conduction of water in a straw dipped in the water। वाटर में अगर स्ट्रॉ रखेंगे तो स्ट्रॉ में देखोगे वाटर ऊपर तक आता है, ठीक है। A certain height because of the capillarity, the height to which the water is raised depends on the diameter of the straw। बराबर है, स्ट्रॉ जितना पतला रहेगा ज्यादा हाइट तक जाएगा, जितना कम रहेगा उतना हाइट तक नहीं जाएगा। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली काम करता है। Capillarity is because of the surface tension and the forces of cohesion attraction between the molecules and addition attraction between unlike molecules। ये मैंने बताया था तुमको। Addition is the force of attraction between different molecule and cohesion is the force of attraction between the same molecule। ठीक है, देखो इधर दिया भी है, xylem vessel truncates with its lumen is comparable with the straw wall। water column exists because of the combined cohesive and adhesive force। ये क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। ये समझो तुम्हारा ल्यूमेन है, और इसमें क्या होता है, वाटर जाता है, तो वाटर का एक कॉलम बनता है ना, पूरा वाटर कॉलम बनता है, पूरा ये वाटर कंटिन्यू वाटर। वाटर कॉलम क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो ये बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। वाटर का फोर्स क्या है, कोहेसिव। अच्छा, ये जो रेड कलर का बना है वो मैंने वॉल ऑफ जाइलम है, तो जाइलम वॉल है, और वाटर का दोनों में आपस में कांटेक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स की वजह से एक कंटिन्यू वाटर कॉलम होता है और पानी ऊपर जाता है। ऐसा किसमें, इन लोगों ने स्टडी करके बताया, फ्यू एक्सपेरिमेंट स्टडी शोज दिस। ठीक है, तो इधर लिखा है देखो, इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी वाटर इज रेज्ड और कंडक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन against the gravity to few centimeters only। तो अभी ये टॉल प्लांट में कैसे पानी ऊपर जाता है किसी को मालूम। ऑब्जेक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ कैपिलरी थ्योरी, few important objections are capillary tube xylem must be continuously and completely hollow from one end to the other end, but the truncates in the xylem shows closed end walls। एक वॉल उसके ऊपर एक वॉल ऐसा जाएगा, क्लोज्ड एंड वॉल। कैपिलरी ट्यूब जाइलम क्या होता है, कंटिन्यू होना चाहिए ना, जाइलम कंटिन्यू होना चाहिए, बट जाइलम कंटिन्यू नहीं होता एक्चुअली। इसके लिए क्या है, जाइलम शुड बी कंटिन्यू, ये जाइलम कंटिन्यू होना चाहिए। बट अगर हम इसकी बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब के लिए,
बट ये कैपिलरी ट्यूब के लिए, बट जाइलम एक्चुअली कंटिन्यू नहीं होता, बीच बीच में ब्रेक्स रहता है उसके, ठीक है। तो ये थियरी रिजेक्टेड हो गई। एंड टू एंड बोल, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जाइलम मस्ट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर, मैंने बताया था the xylem should be in contact with water, but actually it is not xylem, it is the root which is in contact with water, ठीक है, and that too not in water, soil water. Narrower the capillary tube, greater is the height to which the water column is used. The tall plant may should xylem vessels with narrow bore diameter, but however in nature the tall trees of xylem have wider bore, उसका bore wide होता है, हाँ? Hence the sum of the capillary cannot be the sole mechanism to explain the ascent of sap in all plant spreading height. So अभी cohesive theory करना है, ठीक है। अभी दो थियरी हमने स्टडी किया, जस्ट थोड़ा रीड करो एक बार। Now cohesion tension theory, transpiration pull theory. This is presently the widely accepted theory explaining the ascent of sap in plants. Now it was put forth by Dixon and Joly in the year 1894. 1894 में उन्होंने बताया था। दिस इज अ ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। मैं बता रहा तुमको क्या होता है। बेसिकली क्या बोलना चाहता है वो कि ये जाइलम का लुमेन है, ठीक है, और ऊपर सरफेस में क्या रहता है, लीव्स वगैरह रहता है। लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, बराबर है। तो ट्रांसपिरेशन से वाटर इज ऑलवेज लॉस्ट। जब वाटर लॉस होता है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। सक्शन फोर्स, जैसे हम लोग पिचकारी में खींचते हैं ना पानी अंदर, तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल का आदत है अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कॉमन बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनाने का, इसको हम कोहेशन फोर्स बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। फिर क्या होता है, एट द सेम टाइम ये एडिसिव फोर्स भी होता है जाइलम वेसल का और जाइलम वॉल का और वाटर का अट्रैक्शन। तो ये जो बीच में है वो कौन सा है, कोहेशन की वजह से होता है। क्या है, कोहेशन। ये कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स वाटर की वजह से, वाटर का आपस में। और ये जाइलम का और वाटर का जो अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं एडिसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। तो कोहेजन एंड एडिशन फोर्स की वजह से क्या होता है, एक कॉमन एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम तैयार होता है, एक कंटिन्यू वाटर कॉलम तैयार होता है। समझ में आया बेटा? तो कंटिन्यू वाटर कॉलम तैयार होने होता है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वो ऊपर ऊपर जाता है। तो कितना भी हाइट रहेगा, जितना हाइट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उतने हाइट पे हो जाता है। तो ये थियरी था। You can take this snapshot. I'll send you the recording. Don't worry. So that is the cohesive force theory. समझा सबको? हाँ सर। Okay. Now we'll go ahead for the next part. But ये theory भी reject हो गया। बताता हूँ कैसे, ठीक है? Why it is rejected? Because for cohesive water, cohesive force क्या होना चाहिए? The lumen of the xylem should be continue, and दूसरी बात, there should not be any interference in the water column. Water column break नहीं होना चाहिए. But because of entry of gases like carbon dioxide and exit of oxygen, the water column may break, and ये transpiration pool can stop. So this is also rejected finally. Now, a strong force of attraction between the water molecule is called as cohesive force, while a strong force of attraction between the water molecule and lignified walls of lumen xylem is called as adhesive force. Due to combined adhesive and cohesive force, a continuous water column is developed. एडिसिव और कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स की वजह से कंटिन्यू वाटर कॉलम डेवलप होता है इन द जाइलम। मैंने बताया था अभी कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स है ना, अप टू द रूट फ्रॉम टिप टू द टॉप मोस्ट लीफ ऑफ द प्लांट। द ट्रांसपिरेशन पुल, द ट्रांसपिरेशन पुल इज डेवलप्ड बाय द लीफ वेसल्स, इज ट्रांसमिटेड डाउन टू द रूट एंड thus account for the ascent of sap, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। Excess water is lost in the form of water vapor, mainly through stomata found on the leaves. This water loss increases the DPD of the mesophyll cells. These cells withdraw water ultimately from xylem into the leaves. In other words, due to continuous transpiration, a gradient of suction pressure
DPD is developed right from the card cell up to the xylem in the leaf. This will create a tension called negative pull or transpiration pull in the xylem. Consequently, a water column is pulled out of the xylem. Thus, the water is pulled upward passively against the gravity, leading to the ascent of sap, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है. Now, objections और limitations. इसका limitations क्या है? For transpiration pull to operate, क्या होना चाहिए? The water column should be unbroken. Water column break नहीं होना चाहिए, continue होना चाहिए. However, due to temperature fluctuation during day and night, the gas bubbles may enter the water column. जो मैंने बताया था, water column जो था continuously, वो उसमें gas bubble जाके उसको break कर सकते. And at the end, the walls support the column. Now, however, the vessels are more evolved than tracheids and are more efficient. If plant is smeared with Vaseline, अगर plant को Vaseline में किया, then to stop the transpiration, even the ascent of sap occurs. क्या बोल रहा है? प्लांट को वैसलीन से कोट किया है, कवर किया पत्ते से, तो अभी ट्रांसपिरेशन होगा नहीं. अरे प्लांट के जो पत्ते होते हैं इसको वैसलीन का कोट कर दिया तो ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं, फिर भी वाटर ऊपर जाता है. तो ascent of sap, transpiration pull, cohesive force, ये cannot be the sole mechanism. So ascent of sap occurs in deciduous plant that have shed all their leaves. वो प्लांट जिसका सारे पत्ते झड़ चुके हैं फिर भी ऊपर जाता है पानी, तो उसमें भी जाता है. तो कैसे हो सकता है? पानी तो ऊपर जाता ही है, पत्ते नहीं है ट्रांसपिरेशन, तो भी वो वाटर ऊपर जाता है. तो दिस इज नॉट द सोल मैकेनिज्म. द ऑब्जर्वेशन point to fact that besides physical force activity, that living cells seems to be necessary for lifting the water column up. Now ये क्या बोल रहा है? ये फोर्स के अलावा लिविंग सेल्स में भी एनर्जी होता है, पानी ऊपर खींचते हैं. बट कैसे? स्टिल ये अभी तक एक बड़ा मिस्ट्री है. अभी तक एक बड़ा मिस्ट्री है. तुम बताओ क्या हो सकता है? उसके लिए तुमको रिसर्च करना चाहिए. रिसर्च के लिए बहुत जगह है अभी टाइम है.